Okay, in this video we will see classification of network based on network relationship. In previous video we have seen classification of network on the basis of geographical area and transmission technology. Okay, on the basis of geographical area there are 5 types: PAN, CAN, LAN, MAN and WAN. And on the basis of transmission technology there are 2 types. First one is the broadcasting and second one is the point to point. Now third classification is based on network relationship. On the basis of network relationship, there are a classification of network on the basis of relationship of computers or a node in a network. So there are 3 types. First one is the peer-to-peer computer network, second one is the server-based network, and third one is the client-based network. So we will see in details one by one. So first network is peer-to-peer network. ठीक है. सो ये देखिए डायग्राम है peer to peer नेटवर्क की, यानी जो भी हर एक कंप्यूटर जो है वो हर एक कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होगा. हर एक कंप्यूटर की जो हार्डवेयर होगा या उसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो सेम होगा, इसलिए हर एक कंप्यूटर को इसको हम पीयर्स बोलेंगे. ठीक है. और हर एक कंप्यूटर एक में के साथ कनेक्टेड होता है, इसलिए हम उसको पीयर टू पीयर नेटवर्क बोलेंगे. ठीक है. सो इन पीयर टू पीयर नेटवर्क ईच कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू ऑल अदर कंप्यूटर्स which are in the networks. Okay. So in peer to peer, no dedicated server, our computers are equal, called as peers. Okay. So in peer to peer no dedicated server, यानी जो भी all computers होंगे उसमें कुछ dedicated server नहीं है. जो भी computers होंगे वो सेम कॉन्फ़िगरेशन के होंगे, यानी उसकी जो एफिशिएंसी होंगी वो सेम होंगी, इक्वल्स होंगे, इसलिए उसको हम पीयर्स बोलते हैं. यानी ईच कंप्यूटर है वो एक्ट एज अ क्लाइंट होगा एज वेल एज सर्वर होगा. नो एडमिनिस्ट्रेटर इज रिक्वायर्ड, यानी जो भी कंप्यूटर होगा वो एक्ट एज अ क्लाइंट होगा एज वेल एज सर्वर होगा. यानी जो कंप्यूटर रिक्वेस्ट करता है दूसरे कंप्यूटर को, अगर उसको कुछ डेटा चाहिए तो रिक्वेस्ट भी कर सकता है इस कंप्यूटर के साथ, और अगर दूसरे कंप्यूटर की रिक्वेस्ट आती है इसके पास तो उसको वो फुलफिल भी करता है, यानी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भी करता है और रिक्वेस्ट मेक भी करता है. तो ईच कंप्यूटर एक्ट एज अ क्लाइंट एज वेल एज सर्वर. सो हियर देयर इज नो एडमिनिस्ट्रेटर responsible for the entire work. The user at each computer determines what data on that computer is shared on the network. Okay. So each computers have equal configuration, so no administrator is required. Okay. So peer to peer network कब use होता है? So it is used when there are 10 users or fewer. जब हमारे पास 10 यूजर्स होते हैं या उससे कम यूजर्स होते हैं तब हम यूज कर सकते हैं पीयर टू पीयर नेटवर्क. देन यूजर शेयर रिसोर्सेज, जब हमको नेटवर्किंग में हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्स शेयर करने होते हैं बट हमारे पास स्पेशलाइज सर्वर नहीं होता है, तब हम पीयर टू पीयर नेटवर्क यूज करते हैं. और थर्ड है सिक्योरिटी इज नॉट एन इशू, यानी हम नेटवर्क क्रिएट करते हैं तो सिक्योरिटी का कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है या प्राइवेसी वायोलेशन का कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है, तो तब हम पीयर टू पीयर नेटवर्क यूज कर सकते हैं. ठीक है. सो पीयर टू पीयर नेटवर्क में क्या होता है, ईच कंप्यूटर in a network is connected to all other computers in a network. So all computers have equal configuration, so these computers are called as the peers. Each computer act as a client as well as server, so this computer can make a request, also fulfill the request of other computer, so these computer act as a client as well as server. No administrative is required, and it is used when there are 10 numbers of users or fewer. Then security is not an issue and users shared resources. Okay. Then peer to peer network is used. Now what are the advantages of peer to peer network? ठीक है. So first advantage of peer to peer network is यूज लेस एक्सपेंसिव कंप्यूटर हार्डवेयर. ओके. इसमें कुछ ऐसा स्पेशलाइज या डेडिकेटेड सर्वर नहीं है, ऑल कंप्यूटर की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम है, तो
लेस रिसोर्सेस जो है वो शेयर की जाती है, फाइल जो है वो शेयर की जाती है, तो लेस एक्सपेंसिव हार्डवेयर ये रिक्वायर्ड करता है। सेकंड एडवांटेज है इजी टू एडमिनिस्टर। ओके, इन पीयर टू पीयर नेटवर्क ईच मशीन परफॉर्म्स इट्स ओन एडमिनिस्ट्रेशन। The effort of administering the network is widely distributed to many different users. So, this peer-to-peer network is easy to administrate क्योंकि each कंप्यूटर जो खुद का एडमिनिस्ट्रेशन खुद करता है, so easy to administration. Then third advantage है network operating system is नॉट रिक्वायर्ड। ओके, यहाँ पे डेडिकेटेड सर्वर नहीं है या स्पेशलाइज सर्वर नहीं है, इसलिए यहाँ पे नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत नहीं है। ईच जो सिस्टम है वो क्लाइंट भी एक्ट होती है या सर्वर भी एक्ट होती है, इसलिए यहाँ पे नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज नहीं होता है। देन है बिल्ट इन रिडंडेंसी। बिल्ट इन रिडंडेंसी मीन्स क्या होता है कि 10 कंप्यूटर एक में के साथ कनेक्टेड है, अगर एक कंप्यूटर में कुछ फॉल्ट आ जाता है या क्रैश हो जाता है तो अदर जो कंप्यूटर है उसका जो काम है वो शुरू रहता है, वो डिपेंड नहीं रहता उस पर्टिकुलर कंप्यूटर पे। ठीक है, सो peer to peer network achieve more redundancy because fewer single point of failure. Okay, and the last advantage है easy to install. इंस्टॉलेशन जो है इसका इजी है, एक कंप्यूटर और अदर कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना है हमको। ठीक है, तो ये हो गए एडवांटेजेस, दैट इज यूज लेस एक्सपेंसिव कंप्यूटर हार्डवेयर, easy to administrator, network operating system is not required, built-in redundancy, and last one is the easy to install. Now disadvantages of peer-to-peer network. Now disadvantages कौन से हैं? अभी पीयर टू पीयर नेटवर्क ही कहाँ पे यूज किया जाता है जहाँ पे सिक्योरिटी का कुछ इशू ही नहीं है, हमको सिक्योरिटी चाहिए ही नहीं है, तो इसलिए ये जो पीयर टू पीयर नेटवर्क है वो सिक्योर नहीं होता है। ईच कंप्यूटर कैन सी द डेटा ऑफ ऑल अदर कंप्यूटर्स, तो प्राइवेसी वायलेट होती है यहाँ पे, वो सिक्योर नहीं होता है। देन सेकंड है हार्ड टू बैकअप। ओके, यहाँ पे कुछ सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है या सर्वर नहीं है, इसलिए आइसोलेटेड बैकअप लेना पड़ता है, यानी ईच सिस्टम का सेपरेट बैकअप लेना पड़ता है, फिर उसको मेंटेन भी करना पड़ता है। सो जो बैकअप लेना जो है वो डिफिकल्ट टास्क है इन पेयर टू पेयर नेटवर्क। देन हार्ड टू मेंटेन वर्जन कंट्रोल, यहाँ पे देखिए एक ही फाइल पे अगर मल्टीपल नंबर्स ऑफ यूजर काम कर रहे हैं तो उसमें फर्स्ट कंप्यूटर ने उस फाइल को चेंज कर दिया, उसका वर्जन 1 बन गया, फिर सेकंड सिस्टम ने उसको एक्सेस किया, उसका वर्जन 2 बन गया, फिर थर्ड सिस्टम ने उसको एक्सेस किया, उसका वर्जन 3 बन गया। तो एक ही फाइल के डिफरेंट नंबर ऑफ वर्जन क्रिएट होते रहते हैं, तो उसको मेंटेन करना कुछ डिफिकल्ट हो जाता है इन पेयर टू पेयर नेटवर्क। एंड लास्ट है डिसेंट्रलाइज, यहाँ पे कुछ ऐसा सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है जहाँ पे ऑल सॉफ्टवेयर एंड ऑल डेटा सेव्ड हो जाता है, ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, एंड ईच मशीन की कुछ मेमोरी है, कुछ रिसोर्सेस है, और ऑल अदर मशीन उस मेमोरी को या रिसोर्सेस को शेयर करते हैं, इसलिए बैकअप लेना मुश्किल हो जाता है, हार्ड हो जाता है, या उसका सेंट्रलाइज मैनेजमेंट जो है वो हार्ड हो जाता है इन पेयर टू पेयर network. So these are the disadvantages of peer-to-peer network. Then second type है server based network. Server based network में क्या होता है? One is the डेडिकेटेड सर्वर। अभी पेयर टू पेयर नेटवर्क हम कहाँ पे यूज करते हैं, जहाँ पे 10 नंबर्स ऑफ यूजर होंगे या उससे कम होंगे, बट अगर हमारे पास 10 से ज्यादा यूजर है या 10 से ज्यादा कंप्यूटर्स है, तो तब हम पेयर टू पेयर नेटवर्क यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उसका जो इंस्टॉलेशन है या सेटअप है बहुत मुश्किल हो जाता है एक में के साथ उसको कनेक्ट करना, इसलिए फिर हम यूज करते हैं सर्वर बेस्ड नेटवर्क। यहाँ पे सर्वर बेस्ड नेटवर्क में क्या होता है, एक सिंगल डेडिकेटेड सर्वर होता है जो ऑल द रिसोर्सेस यहाँ पे इंस्टॉल होते हैं, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं, ऑल द फाइल सेव होती है, ये सर्वर होता है सिंगल डेडिकेटेड, और ऑल अदर कंप्यूटर्स वो क्लाइंट होते हैं। तो क्लाइंट क्या करता है, सर्वर को रिक्वेस्ट करता है कि मुझे ये फाइल चाहिए या हार्डवेयर चाहिए, और सर्वर जो है वो क्लाइंट की रिक्वेस्ट फुलफिल करके उसको जो फाइल का एक्सेस देता है या रिसोर्स का एक्सेस देता है। ठीक है, so dedicated server is one that functions only as a server and is not used as a client. Okay,
Dedicated because they are not themselves clients, because they are optimized to service request from network client quickly and to ensure the security of files and directories. ओके, अभी ये जो डेडिकेटेड सर्वर है फिर वो जो भी क्लाइंट की रिक्वेस्ट आते हैं उस रिक्वेस्ट को क्विकली फुलफिल करता है, जो भी डेटा इस पे सेव है उसकी सिक्योरिटी को मेंटेन करता है एंड जो भी डायरेक्टरीज है उसका भी सिक्योरिटी वो हैंडल करता है. ठीक है. सो nowadays server based network have become the standard model for networking. अगर networking हमको यूज करना है तो ये server based model ही यूज हम करते हैं, यानी एक सर्वर सिंगल सर्वर ले लेते हैं और ऑल अदर कंप्यूटर को हम क्लाइंट बना देते हैं, यानी जो भी उसको रिसोर्सेज चाहिए या कुछ भी फाइल चाहिए तो हम सर्वर से रिक्वेस्ट करके उसका एक्सेस पा लेते हैं. ठीक है. So, server-based network is a network in which all available network resources such as files, directory, applications and devices are centrally managed and accessed by the clients. Okay, means all the files होंगे, directories होंगी, application या software होंगे और devices होंगे वो server पे install होंगे and these files and resources are accessed by the clients. Okay. So server computers are responsible for making available and managing shared resources. ठीक है. तो ये सर्वर बेस्ड नेटवर्क में, ठीक है, सिंगल सर्वर होता है और बाकी के जो कंप्यूटर्स है वो क्लाइंट्स होते हैं. पीयर टू पीयर नेटवर्क में ऑल द कंप्यूटर्स एक्ट एज ए सर्वर्स एज वेल एज क्लाइंट, उसमें कुछ डेडिकेटेड सर्वर नहीं होता है. ठीक है. फिर एडवांटेजेस ऑफ सर्वर बेस्ड नेटवर्क, ये सिक्योर होता है क्योंकि यहाँ पे सर्वर होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर सिक्योरिटी ऑफ फाइल्स और डायरेक्टरीज विच आर सेव्ड ऑन अ सर्वर सिस्टम. अगेन सर्वर आर फिजिकली इन सिक्योर लोकेशन सच एज लॉकेबल सेपरेट सर्वर रूम. जो भी सर्वर मशीन होती है वो हम एक सिक्योर लोकेशन पे रख सकते हैं जो हम लॉक करके, इसलिए वो सिक्योर हो जाता है. और सर्वर मशीन पे नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम भी रन होता है, वो भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है टू दी नेटवर्क, इसलिए वो सिक्योर होता है. ठीक है. देन बेटर परफॉर्मेंस क्यों, यहाँ पे डेडिकेटेड सर्वर होता है जो पावरफुल होता है, उसमें पावरफुल हार्डवेयर कंपोनेंट होते हैं जिसके कारण वो अच्छा परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है टू दी यूजर्स. ठीक है. तो यहाँ पे डेडिकेटेड सर्वर होता है, डेडिकेटेड सर्वर में पावरफुल सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर रिसोर्सेस होते हैं, दैट्स व्हाई इट्स प्रोवाइड बेटर परफॉर्मेंस एज कंपेयर टू पीयर नेटवर्क. देन है सेंट्रलाइज्ड बैकअप. ओके, यहाँ पे सेंट्रलाइज सर्वर है, ऑल द फाइल्स एंड डायरेक्टरीज आर सेव्ड ऑन अ सर्वर सिस्टम, सो बैकअप लेना उसका इजी हो जाता है, सेंट्रलाइज बैकअप हम उसका ले सकते हैं. देन रिलायबल होता है, सर्वर बेस्ड नेटवर्क यूजेस सेंट्रलाइज्ड डेडिकेटेड सर्वर सो इट प्रोवाइड्स मोर रिलायबिलिटी. देन है डिसएडवांटेजेस है रिक्वायर प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेटर. क्यों, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क सर्वर बेस्ड है तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम को हमको इंस्टॉल करना पड़ता है, उसको हैंडल करना पड़ता है, सो इट रिक्वायर्ड प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेटर. देन सेकंड डिसएडवांटेज है मोर हार्डवेयर इंटेंसिव. It required client computers, also high speed server computers with lots of memory and disk space, so it is more hardware intensive, and again it is more software intensive because it is server based network, so it required network operating system and appropriate number of client license, so it is more software intensive. तो ये क्या होती है, एक्सपेंसिव सिस्टम हो जाती है क्योंकि हार्डवेयर रिसोर्सेज भी ज़्यादा पावरफुल लगते हैं और सॉफ्टवेयर भी, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम भी लगते हैं, क्लाइंट का लाइसेंस भी लगता है, तो इसलिए ये एक्सपेंसिव हो जाती है. तो ये है डिसएडवांटेजेस ऑफ सर्वर बेस्ड नेटवर्क, दैट इज रिक्वायर प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेटर, मोर हार्डवेयर इंटेंसिव एंड मोर सॉफ्टवेयर इंटेंसिव. नाउ नेक्स्ट है क्लाइंट बेस्ड नेटवर्क. अभी क्लाइंट बेस्ड नेटवर्क क्या है, इसका ही सर्वर बेस्ड नेटवर्क का एक्सटेंडेड वर्जन है. क्लाइंट बेस्ड नेटवर्क में क्या होता है, जैसे सर्वर बेस्ड नेटवर्क में सिंगल सर्वर रहता था, तो यहाँ पे क्लाइंट बेस्ड नेटवर्क में मल्टीपल सर्वर रहते हैं, यानी एक ही सर्वर का जो टास्क है हम मल्टीपल सर्वर में डिवाइड कर देंगे, यानी फाइल सर्वर अलग होगा, प्रिंटर सर्वर अलग होगा, डायरेक्टरी सर्वर अलग होगा, यानी
जो सिंगल सर्वर का जो बर्डन, हेवी बर्डन है, हमने उसको डिवाइड कर दिया मल्टीपल नंबर्स ऑफ सर्वर में, ठीक है। सो एज नेटवर्क साइज इंक्रीजेस, मोर देन वन सर्वर इज नीडेड. So, spreading the networking task among several servers ensure that each task will be performed as efficiently as possible. ठीक है, मोर देन सर्वर में हमने जो टास्क है वो डिवाइड कर लिया, तो जो भी टास्क परफॉर्म करना है वो इफिशिएंटली परफॉर्म होगा क्योंकि नंबर ऑफ यूजर जो है वो बढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर इट एंश्योर द इफिशिएंसी, ठीक है। अगर सिंगल काम के लिए डेडिकेटेड सर्वर है, अगर फाइल सर्वर अलग है, प्रिंटर सर्वर अलग है, तो उसका जो काम है वो मोर इफिशिएंटली परफॉर्म होगा. सो इट इंश्योर इफिशिएंसी. इट इज एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ सर्वर बेस्ड नेटवर्क. या ऑब्वियसली एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ सर्वर बेस्ड नेटवर्क है, बट यहाँ पे सिंगल सर्वर के बजाय मल्टीपल नंबर ऑफ सर्वर यूज किए गए हैं. Then it relieves the heavy burden of single dedicated server to adding more specific server and processing some functions locally at computers. Okay. And then in client-based network, client machine processing power is used to process some functions locally while requesting additional processing from sub. यहाँ पे क्या होता है, अगर कुछ लोकली काम क्लाइंट मशीन परफॉर्म कर सकती है तो क्लाइंट मशीन पे ही वो काम परफॉर्म किया जाता है और कुछ एडिशनल प्रोसेसिंग के लिए सर्वर से हेल्प ली जाती है, ठीक है। तो ये क्लाइंट बेस्ड नेटवर्क है, ठीक है। तो देखिए पीयर टू पीयर में क्या होता था, ऑल मशीन्स एक्ट एज अ क्लाइंट एज वेल एज सर्वर्स, और एक में के साथ पूरी कनेक्टेड थी। सर्वर बेस्ड में सिंगल सर्वर था और ऑल अदर द मशीन्स एक्ट एज अ क्लाइंट थी। और एंड क्लाइंट बेस्ड नेटवर्क में क्या होता है, टू और मोर सर्वर्स होते हैं, डेडिकेटेड सर्वर होते हैं और ऑल अदर मशीन्स आर एक्ट एज अ क्लाइंट, ठीक है। तो यहाँ पे फाइल सर्वर अलग है, डायरेक्टरी सर्वर अलग है, और ये सब जो कंप्यूटर है वो क्लाइंट है। तो अगर उसको फाइल रिलेटेड कुछ टास्क करना है तो वो फाइल सर्वर को रिक्वेस्ट करता है, डायरेक्ट रिलेटेड काम करना है तो वो डायरेक्टरी सर्वर को रिक्वेस्ट करता है। मीन्स एट अ टाइम फाइल सर्वर भी इफिशिएंटली काम करेगा, डायरेक्टरी सर्वर भी इफिशिएंटली काम करेगा। तो ये क्लाइंट बेस्ड नेटवर्क है। देन क्लाइंट बेस्ड नेटवर्क के एडवांटेजेस क्या है, क्लाइंट बेस्ड नेटवर्क के पावरफुल प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज ऑफ बोथ क्लाइंट एंड सर्वर। यहाँ पे सर्वर भी पावरफुल है और क्लाइंट भी पावरफुल है, मोर पावरफुल हार्डवेयर यूज कर रहे हैं। देन रिलीव हेवी बर्डन ऑन सिंगल डेडिकेटेड सर्वर, मल्टीपल सर्वर यूज होते हैं इसलिए जो हेवी बर्डन है सिंगल डेडिकेटेड सर्वर का वो रिलीव कर रहा है। देन सिक्योर एंड रिलायबल, या सर्वर है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसलिए वो सिक्योर है और रिलायबल भी है। देन डिसएडवांटेज है क्लाइंट बेस्ड नेटवर्क के, रिक्वायर प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव, यस अगर आपको इंस्टॉलेशन करना है क्लाइंट बेस्ड नेटवर्क तो प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेटर लगता है। देन मोर हार्डवेयर इंटेंसिव, यस यहाँ पे क्लाइंट मशीन भी हेवी पावरफुल हार्डवेयर चाहिए और सर्वर मशीन के लिए भी हेवी पावरफुल हार्डवेयर चाहिए, तो मोर हार्डवेयर इंटेंसिव है। देन मोर सॉफ्टवेयर इंटेंसिव क्यों है, क्योंकि टू और मोर सर्वर है तो टू और मोर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम लगेंगी टू हैंडल दैट पर्टिकुलर सर्वर, सो मोर सॉफ्टवेयर इंटेंसिव है। और यहाँ पे मोर पावरफुल सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर यूज हो रही है इसलिए कॉस्टली भी है। तो ये डिसएडवांटेजेस हो गए क्लाइंट बेस्ड नेटवर्क के, ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ network relationship, there are three types of network. First one is the peer to peer network, second one is the server based network, and third one is the client based network. Now we will see the comparison between peer to peer, server based and client based network. So in peer to peer network there are no dedicated server, each machine acts as a client as well as a server. Then in server based network there is a one dedicated server, single server रहता है, and client based network में more than one server रहता है, ठीक है। Then second difference है in this each machine has the same power, okay, same power same configuration होता है peer to peer में। Then in this server has more power and client has less power, yes, and server and client are both powerful client बेस्ड नेटवर्क में, ठीक है। सो इज यूजर्स लेस एक्सपेंसिव कंप्यूटर हार्डवेयर, क्योंकि
ईच मशीन होती है वो सर्वर एक्ट होती है और क्लाइंट भी एक्ट होती है, तो सेम पावर रहता है, तो एक्सपेंसिव नहीं रहती है, ज्यादा लेस एक्सपेंसिव रहती है। यहाँ पे डेडिकेटेड सर्वर यूज होता है तो इसलिए मोर एक्सपेंसिव रहते हैं, और यहाँ पे क्लाइंट और सर्वर बहुत ही पावरफुल रहता है इसलिए मोस्ट एक्सपेंसिव होते हैं। देन फोर्थ है इजी टू सेटअप एंड एडमिनिस्ट्रेटर। ये है कॉम्प्लेक्स टू सेटअप एंड रिक्वायर्ड प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेटर। कॉम्प्लेक्स टू सेटअप एंड रिक्वायर प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेटर, क्योंकि ये बोथ सिस्टम में डेडिकेटेड सर्वर यूज होता है और नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम भी यूज होते हैं, तो यहाँ पे रिक्वायर प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, ये लेस सिक्योर है, ये मोर सिक्योर है, मोर सिक्योर है, दोनों भी सिक्योर है क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर होता है और नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम भी होती है तो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। देन सिक्स्थ पॉइंट है डिसेंट्रलाइज बैकअप। ओके, डिफिकल्ट टू बैकअप। यहाँ पे ईच सिस्टम पे कुछ डेटा होता है तो ईच सिस्टम का बैकअप आइसोलेटेड बैकअप लेना पड़ता है, तो डिसेंट्रलाइज बैकअप लेना पड़ता है। यहाँ पे एक ही सिस्टम सर्वर होता है जहाँ पे ऑल डाटा एंड रिसोर्सेस होता है तो बैकअप लेना इजी हो जाता है, तो ये सेंट्रलाइज बैकअप होता है, इजी टू बैकअप। और यहाँ पे भी 2 और मोर सर्वर होते तो सर्वर का ही बैकअप लेना पड़ता है, तो सेंट्रलाइज बैकअप हो जाता है। Then 7 point है network operating system is not required because of no dedicated server. UNOS is required, UNOS is required. Okay. Then slow in processing speed, क्योंकि all computer connected to each other तो speed जो है वो slow हो जाती है, medium speed होती है और यहाँ पे high speed हो जाती है क्योंकि 2 or more server है। Then it support small network या minimum 10 या फ्यूअर यूजर के लिए ये पीयर टू पीयर नेटवर्क यूज होता है, तो स्मॉल नेटवर्क के लिए यूज होता है। ये सपोर्ट लार्ज नेटवर्क। देन माइट हर्ट यूजर परफॉर्मेंस। स्लो स्पीड होती है तो परफॉर्मेंस कम होता है, बेस्ट परफॉर्मेंस बेटर परफॉर्मेंस। देन हार्ड टू मैनेज, इजी टू मैनेज। देन चीपर केबलिंग कॉस्ट, हायर केबलिंग कॉस्ट। ये एक्सपेंसिव होता है, ये भी एक्सपेंसिव होता है, ये चीपर होता है। तो these are the comparison between peer-to-peer, server-based and client-based network. So here, end of the classification of computer network. So there are three classification of computer networks on the basis of geographical area. Second one is the transmission technology, and third one is the network relationship. Thank you.